Good evening, my dear students. Welcome back to your EVS class. Now, in today's class, we are going to start a new lesson. And do you know what is the name of the lesson? I'll say you. The name of our today's lesson is, see, the air around us. What is the name of a lesson? The name of a lesson is the air around us. So what you are going to learn in this lesson? See, my dear students, in this lesson we are going to learn about the most important thing. And what is that most important thing? Air. Air means hawa. The air is the most important thing. Why? Because we breathe in air. We breathe in and that's why we live. हम एयर अंदर ब्रीथ करते हैं और फिर तभी हम जी सकते हैं. So it is an important part. So are you curious to learn about this? So I am also. So without wasting much of our time, come we will start. My dear students, take your page number 181 at chapter number 3. But before starting the lesson, let me tell you one thing, my dear students. When I will read the lesson, you will not look here and there. You will look in the book and you will keep your finger on the line. Why finger on the line? Because this will help you to know that where I am reading. So come, let's start our chapter number 3, the air around us. Air is all around us. Our earth is covered in a blanket of air called the atmosphere. The atmosphere is a mixture of various gases such as nitrogen, oxygen and carbon dioxide. Now my dear students, as you know, the air is around us, means air is everywhere. जैसे कि आपको पता है कि air हर जगह रहती है. ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर एयर नहीं हो सकती है. सो एयर इन इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस. मतलब एयर जो है वो वेरियस गैसेस का मिक्सचर है. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 गैसेस का मिक्सचर है एयर. सो एज यू नो दैट एयर इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स टू लिव. एयर बहुत ज़्यादा कंपलसरी है सारे लिविंग बींग्स के लिए जो अर्थ पे रहते हैं. नाउ वी विल सी व्हाई डू वी नीड एयर. एज यू नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. सो इफ देयर वाज नो एयर, there would be no plants, animals or people on the earth. There would be no life on the earth. As you know that air is needed for all living beings. Air हर living being के लिए कंपलसरी है, क्योंकि एयर ही है जिसकी मदद से हम सांस ले पाते, हम ब्रीथ कर पाते, एनिमल्स ब्रीथ कर पाते, प्लांट्स ब्रीथ कर पाते और ह्यूमन बींग्स ब्रीथ कर पाते हैं because of air. Now we will see more. Though we cannot see, smell or taste air, we breathe air. Breathing air is important for humans and animals to live. Now as you can see, we cannot see air. हम air को देख नहीं सकते, हम air को smell नहीं कर पाते और air को taste नहीं कर पाते. But we breathe air. चलो मान लिया हम देख नहीं पाते, स्मेल नहीं कर पाते, टेस्ट नहीं कर पाते, लेकिन हम एयर को ब्रीथ कर पाते हैं. एयर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स टू लिव. जैसे कि जानवर और इंसान दोनों के लिए एयर बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है जीने के लिए, क्योंकि अगर एयर ही नहीं रहेगा तो हम लोग सांस कहाँ से लेंगे, राइट. नाउ नेक्स्ट, प्लांट्स नीड एयर टू मेक देयर फूड. As you all know my dear students, plants need air to make their food. यानी कि plants को air क्यों चाहिए? Plants को air इसलिए चाहिए क्योंकि उन्हें अपना खाना बनाना रहता है. Understood? They need air to make their food. Now we will turn the page. Now next, air pollution.
As you can see, because of the increase of the factories and vehicles, there are very much air pollution in the country. जैसे कि कंट्री में व्हीकल्स बढ़ गए हैं, फैक्ट्रीज बढ़ गए हैं, तो एयर पोल्यूशन इनके वजह से भी बढ़ गया है. नाउ वी विल सी व्हाट इज एयर पोल्यूशन. वी शुड breathe clean air. However, if the air becomes dirty, it can create health problems for humans. Other living beings also need clean air. So we use the term air pollution to describe the condition of air when it gets mixed with unwanted gases, dust, etc. and becomes dirty. Now my dear students, as you know, because of this factories pollution and the smoke releasing from the vehicles make the air dirty. So this increases the danger of air pollution. जैसे ही आपको पता है व्हीकल से निकलने वाला स्मोक और फैक्ट्रीज से निकलने वाले ये स्मोक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है एंड इट इज़ मेकिंग द इंक्रीज इन एयर पोल्यूशन. ये सब चीज़ें किस चीज़ में इंक्रीज कर रही है? एयर पोल्यूशन में. जैसे कि व्हीकल से ब्लैक स्मोक निकलता है, फैक्ट्रीज से स्मोक निकलता है, तो ये सब स्मोक कहाँ जाता है? ये सब स्मोक पूरा एयर में मिक्स हो जाता है और वो स्मोक एयर में मिक्स होकर वो एयर को पोल्यूटेड कर देते हैं. पोल्यूटेड करना मतलब एयर को गंदा करना, और वो गंदा एयर अगर हम ब्रीथ करेंगे तो हम भी बीमार हो जाएंगे. सो वी शुड नॉट डू दिस एयर पोल्यूशन. नाउ वी विल सी व्हाट मेक्स द एयर डर्टी. मतलब एयर को डर्टी क्या बनाता है? क्लीनिंग हाउसेस, रोड्स एंड अदर सच एक्टिविटीज causes dust and germ mix with the air. Cars, buses and trucks give out smoke that mix with the air and make them dirty. Some harmful gases given out by large factories mix with the air and makes it dirty. Bursting of firecrackers, burning of wood and dumping of garbage in open also make the air dirty. Now my dear students, as you know that cleaning house, roads and like this activities make the air dirty. जैसे कि घर साफ करना, रोड साफ करना और अदर एक्टिविटी. कोई अपना ऑफिस साफ कर रहा है, कोई अपना एरिया साफ कर रहा है, तो उससे क्या होता है? डस्ट बढ़ जाता है. क्योंकि साफ करने के लिए हम डस्ट तो करते ही है ना, डस्टिंग. तो वो डस्टिंग एयर में मिक्स हो जाता है और एयर को पोल्यूट कर देता है. द स्मोक रिलीजिंग फ्रॉम व्हीकल्स, मतलब गाड़ियों से जो ब्लैक धुआं निकलता है और जाके एयर में मिक्स हो जाता है, ये भी एयर को डर्टी करता है. हार्मफुल गैसेस, जैसे ही फैक्ट्रीज से निकलता है हार्मफुल गैसेस, क्योंकि फैक्ट्रीज में बहुत सारी चीज़ें बनती है एक साथ, तो एक साथ बहुत सारा गैस भी फैक्ट्री से रिलीज होता है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर हियर. See, so many gases are releasing from the factories. This make air dirty. Now we will see air is getting dirty very soon. How we can keep air clean. Now next we will see keeping air clean. Pollution in air is harmful to all living beings. Therefore, it is important to keep the air clean. We should do the following things to keep the air clean. See my dear students, we are making the air dirty. हम एयर को डर्टी बनाते हैं, है ना? तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ज़्यादा एफर्ट लगाए एयर को क्लीन करने में, क्लीन रखने में, क्योंकि क्लीन एयर रहेगा तो हम क्लीन एयर को ब्रीथ कर पाएंगे, हेल्दी रहेंगे. नाउ लेट्स सी. वी शुड प्लांट मोर ट्रीज. द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ इन comes from the plants and trees. Their green leaves produce oxygen while making food. If we cut down the trees, there would be no enough such oxygen for us to breathe. We should keep a check on smoke that comes out from vehicles and factories. This can be done by using chimneys in the factories, CNG gases in vehicles and etc. Now, as you can see that they have mentioned here
बिकॉज ऑफ प्लांट्स वी ब्रीथ ऑक्सीजन, प्लांट्स की ही वजह से हम लोग ऑक्सीजन ब्रीथ कर पाते हैं। कैसे प्लांट्स की वजह से? क्योंकि देखिए प्लांट्स जब फूड बनाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है, और वो ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए बहुत यूजफुल होता है ब्रीदिंग के लिए। सो वी कैन मेक एफर्ट्स टू प्लांट मोर ट्रीज, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल करके ज़्यादा प्लांट्स को लगाना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स ही हमें हेल्प करेगा ऑक्सीजन इंक्रीज करने में। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। वी मस्ट अवॉइड बर्निंग वुड, ट्विग्स, ड्राई लीव्स एंड मैन मेड मटेरियल्स। वी मस्ट कवर आवर माउथ एंड नोज विथ अ हैंकरचीफ while coughing and sneezing, so that germs do not spread into the air. We must keep the windows open while sleeping, as it allows fresh air to circulate. We should avoid bursting firecrackers. Firecrackers make noise apart from pollution, the air thereby causing more pollution. Now, my dear students, we have seen that how we can avoid पोल्यूशन और हाउ वी कैन मेक लेस पोल्यूशन। अब हम इसमें देख सकते हैं कि हम पोल्यूशन कैसे कम करें। अब इसमें दिया है अवॉइड बर्निंग वुड एंड ड्राई लीव्स एंड मैन मेड सम थिंग्स, मतलब हमें लकड़ियों को जलाना, पेड़ के पत्तों को जलाना और भी काफ़ी सारी चीज़ों को जलाना अवॉइड कर सकते हैं। कफ योर माउथ एंड नोज वाइल स्नीजिंग एंड कफिंग, अपने माउथ और नोज को कवर करना है छींकने और स्नीज करने के वक्त। ये हेल्प करेगा कि एटमॉस्फेयर में कम से कम जर्म्स हो। वी मस्ट कीप द विंडो ओपन वाइल स्लीपिंग, मतलब सोते समय हमें रूम की जो खिड़कियाँ विंडोज रहती है उसको ओपन करना चाहिए। क्यों ओपन करना चाहिए? क्योंकि फ्रेश एयर, बाहर की जो फ्रेश एयर है वो अंदर आ सके। वी शुड अवॉइड बर्स्टिंग द फायर क्रैकर्स। Now my dear students, as you know that you are burning the crackers, जैसे ही सबको पता है कि आप क्रैकर्स बर्न करते हो, क्रैकर्स मतलब फटाके। सो यू शुड अवॉइड बर्निंग क्रैकर्स, आप सब क्रैकर्स यानी कि फटाके उड़ाना बंद कर दीजिए, क्योंकि फटाके उड़ाते हैं उससे नॉइज़ पोल्यूशन होता ही होता है, बट नॉइज़ पोल्यूशन के साथ साथ उसमें एयर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा अमाउंट पे हो जाता है। सो यू शुड स्टॉप बर्निंग crackers. So now my dear students, here we have completed our today's lesson. So my dear students, we have completed our today's lesson. You have known in this lesson that how you can make pollution and how you can help the environment to reduce the pollution. अब आज के हमारे इस लेसन में हमने देख लिया कि पोल्यूशन कैसे होता है, हमने ये भी देखा है कि पोल्यूशन को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। So my dear students, what we have learned in this lesson? We have learned that we should plant a plant every day. हमें ये सीख है कि हमें एक पौधे को लगाना चाहिए, क्योंकि एक पौधा हमें हेल्प करता है। क्यों हेल्प करता है? ब्रीथ लेने में, ऑक्सीजन इंक्रीज करने में। अंडरस्टूड? एंड वी शुड नॉट कट डाउन द ट्रीज, हमें ट्रीज को बिल्कुल कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रीज ही हमारे को हेल्प करते हैं ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज करने में। सो वन मोर थिंग माय डियर स्टूडेंट्स, यू शुड नॉट बर्न मच क्रैकर्स, आप सब क्रैकर्स ज़्यादा नहीं उड़ाना चाहिए। क्रैकर्स मीन्स फटाके, आप सबको फटाके भी ज़्यादा नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि फटाके उड़ाने से भी पोल्यूशन बढ़ता है। सो आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट. So my dear students, it's the time to take leave. I'll see you in the next video. Till that time, stay safe, stay home, stay healthy, breathe in fresh air, be happy. I'll see you soon. Bye bye.